A very good morning to one and all. Welcome to your TSN English class, students. Today we will start with this new video here. This one is your sixth video of chapter 8, Silk Road, from your English book, Hornbill. So, students, previously we have read that author of our chapter, that is Nick Middleton. So he went there in one and only, you can say that, horse cafe or some kind of a lodging, where he just have a cup of tea over there, and a Chinese youth on in military uniform, he served all these things, or like coffee, and bring some glass and thermos of tea. And after waiting for half an hour, Zetnan relieved him with that solitary confinement, and they both of them drove. And there were a lot more rocks and rubbish were there. So today we'll start our chapter from here, this paragraph here. My experience in Hor come as a stark contrast to accounts I do read of earlier travelers' first encounter with Lake Mansarovar. Ekai Kawaguchi, a Japanese monk who had arrived there in 1900, was so moved by the sanctity of lake that he burst into tears. And a couple of years later, the hollowed waters had a similar effect on Sven Haddon, a Swede who wasn't prone to sentimental outbursts. So here in this paragraph, students, the author trying to explain us about his experience in Hor. So his experience in Hor as a staff, exactly the contrast to accounts. So जैसा उसने पढ़ा था उसके contrasting उसका experience था होर में. कैसा था? द फर्स्ट एनकाउंटर विथ लेक मानसरोवर. तो उसने कुछ आई डू रीड अर्लियर ट्रैवलर्स, तो उसने वहाँ जाके कुछ जो पहले प्रीवियसली जो ट्रैवलर्स वहाँ आके जिन्होंने ट्रैवल किया था, और जिन ट्रैवलर्स ने वहाँ जाके बताया था कि अच्छा ये जगह ऐसी है वैसी है, या उन्होंने अपने कुछ प्रीवियस अकाउंट्स में जैसा डिस्क्राइब किया था उससे उसको कॉन्ट्रास्टिंग थोड़ा सा मिला था. एंड फर्स्ट एनकाउंटर विथ लेक मानसरोवर, और ये पहली बार उसका आप कह सकते हैं सामना हुआ, या उसने पहली बार मानसरोवर लेक का को देखा. एकाई कावागुची, जिसमें जो उसने कुछ जो वो पढ़े, जो दूसरे लोगों के ट्रैवलर्स के जो अकाउंट थे, जब उसने वो पढ़े तो उसमें एक एकाई कावागुची जो कि एक जापानीज मोंग, यानी एक जापानीज, आप मोंग, यू ऑल नो दैट मोंग्स आर लाइक बुद्धिस्ट सेंट्स. सो जापानीज मोंग जो हैं उनके बारे में था कि हु हैड अराइव्ड देयर इन 1900, कि वो भी यहाँ मानसरोवर लेक पे 1900 में आए थे. एंड वॉज मूव्ड बाय अ सेंसिटी ऑफ द लेक दैट ही बर्स्ट इनटू टीयर्स. और जब उन्होंने इस लेक को देखा तो इस लेक की सेंटिटी मीन्स इस लेक की पवित्रता या इस लेक की पायसनेस, उसको देखकर वो मोंग जो हैं उनकी आंखों से आंसू बहने लगे. ही बर्स्ट इनटू टीयर्स. A couple of years later, the hallowed again means कुछ पवित्र या pious water had a similar effect on Sven Haddon. तो Sven Haddon पे भी कुछ सालों बाद जब Sven Haddon ने यहाँ विजिट किया मानसरोवर लेक पे, तो उन पर भी similar effect हुआ, where a Swede who wasn't prone to sentimental outburst. लेकिन उन्होंने similar effect हुआ उन पे, लेकिन उसके बाद जो स्वीड थे उनका इस पर ऐसा कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यानी कि वो सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट, यानी वो उन्होंने अपने आप को इस सेंटिमेंट से, इस भावुक क्षण से अपने आप को दूर रखा. सो दैट बिकॉज एवरीबडी इज़ हैविंग डिफरेंट नेचर. तो एक तरफ तो वो ट्रैवलर्स के बारे में बता रहा है यहाँ ऑथर कि एक तरफ तो कुछ ऐसे सेंट्स एंड मोंग्स हैं जो कि उस लेक मानसरोवर को देख के ही बर्स्ट आउट, और दीज पीपल लाइक बर्स्ट आउट ऑफ द टीयर्स. एंड उस तरफ कंट्रास्टिंग कुछ दूसरे लोगों को बता रहा है दैट सम सेंट्स और सम पीपल आर लाइक दैट दे आर कंट्रोल, दे आर लाइक प्रोन टू सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट. दैट मीन्स वो इन सब चीज़ों से दूर रहते थे, एंड दैट इज़ वाई दे केप्ट देमसेल्व्स like with no tears and all. So move on to next paragraph, students. Here it was dark by the time we usually left again, and after
10:30 p.m., we drew up outside a guest house in Darsen for what turned out to be another troubled night, kicking around in the open air. Rubbish dump that passed for the town of Hor had set off my cold once more, though if truth be told, it had never quite disappeared with my herbal tea. So it was dark by the time we finally left again. अब रात हो चुकी थी और वो लोग वहाँ से जा चुके थे. And after 10:30 p.m. we drew up outside a guest house. और 10:30 p.m. के बाद वो एक गेस्ट हाउस के पास पहुँचे in Darsen for what turned out to be another troubled night. क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब नाइट में और क्या ट्रबल आने वाला है. सो फाइनली दे फेल्ट दैट देयर इज लाइक यू कैन से दैट कि वहाँ पर जब उन्होंने वहाँ पर वो जो जगह है जहाँ पर लेक मानसरोवर का पूरा डिस्क्रिप्शन था और जो ट्रैवलर्स वहाँ आए थे, जब उन्होंने उस जगह को छोड़ा तो आफ्टर 10:30 होने के बाद जब वो लोग डार्सेन से उनके जो गेस्ट हाउस था उस गेस्ट हाउस के बाहर उन्होंने देखा तो उनकी रात जो है कि कहीं वो रात जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड नाइट ना हो, ऐसा करने के लिए तो उन्होंने क्या कहा कि ये एक रात जो है ये एक ट्रबल्ड नाइट है और इसलिए वो लोग वहाँ आकर ठहरे थे. एंड आफ्टर दैट kicking around in open air rubbish dump that passed for the town of Hor. And अब यहाँ ऑथर एक्सप्लेन कर रहा है कि इस जगह पे क्या था. किकिंग अराउंड मीन्स यूर ऑन दिस प्लेस. होर के इस कस्बे की गंदगी के ढेरों मतलब ढेरों में इधर उधर उन लोगों ने खुली हवा में ठंडी हवा में वहाँ घूमा. यानी होर के इस कस्बे में गंदगी वगैरह सब फैली हुई थी, उसके बावजूद वो लोग इधर उधर घूमे ठहरे और वहाँ पर उन्होंने उस खुली एयर का मज़ा लिया. इंस्टेड ऑफ दैट रबिश, बिना उस रबिश या गंदगी की चिंता करे हुए, तो वहाँ पर वो लोग दे रोम्ड ओवर देयर. किकिंग अराउंड मीन्स दे रोम्ड ओवर देयर. एंड अब क्या हुआ है, लेट्स रीड. सो दैट पास्ड फॉर द टाउन ऑफ होर एंड हैड सेट ऑफ माई कोल्ड वंस मोर. और जब वो खुली हवा में ठंडी हवा में घूमे, सो आफ्टर दैट दर कोल्ड, अब उन्हें और ज़्यादा ठंड लगने लग गई. एंड दो if the truth be told, that never quite disappeared with my herbal tea. और अब तक उसे ऐसा लग रहा था कि herbal tea पीने से जो उसका ज़ुकाम है, जो स्नीजिंग है या जो उसका कोल्ड है, वो कहीं ना कहीं चला गया है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था. इट वोंट डिसअपियर्ड इफ इनफैक्ट हर्बल टी पीने के बाद जो ऐसा लोग जनरली लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसी टी या ऐसा पी लिया जाए, तो उसके साथ ऐसा नहीं हुआ था ऑथर के साथ उस वक्त. कि उसके जो है वन ऑफ माई नॉस्ट्रिल वॉज ब्लॉक्ड अगेन एंड एज आई ले डाउन टू स्लीप. और जब वो सोने के लिए लेटा तो उसका एक नॉस्ट्रिल मीन्स दीज नथुने जिन्हें हम कहते हैं, तो दीज नॉस्ट्रिल जो है वो उनका एक नॉस्ट्रिल ब्लॉक हो गया था. I wasn't convinced that the other would provide me with sufficient oxygen. और अब वो अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहा था, या आप ये कहें कि अब वो है वो आराम से सो नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी एक नाक का जो नॉस्ट्रिल है वो बंद हो गया था. और लेटते ही उसे ऐसा लगा, व्हेन ही लेज डाउन, तो उसे ऐसा लगा कि उसे प्रॉपर ऑक्सीजन या प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पा रही है. सो दैट ही लेज डाउन ओवर देयर एंड ही ट्राई टू जस्ट sleep over there. And my watch told me I was at 4,760 meter. उसकी वॉच ने उसे बताया it wasn't much higher than रावू से ज़्यादा हायर नहीं थी. And there I do been gasping for oxygen several time. अब वो बेचैन हो गया क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी पूरी रात. I do ground accustomed to these nocturnal disturbances by now, but they are still scared me. अब वो जो है बहुत ज़्यादा used to, accustomed mean used to हो चुका था in nocturnal, आप कह सकते हैं परेशानियाँ या जो डिस्टर्बेंसेस आ रहे थे, बट दे स्टिल स्कैर्ड मी. लेकिन अभी भी उसको इन सब चीज़ों से क्या लग रहा था, थोड़ा सा स्कैर लग रहा था. टायर्ड एंड हंग्री आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ.
अब वो क्या कह रहा है, मैं बहुत थक भी चुका था एंड एट द सेम टाइम वो बहुत भूखा भी था, एंड आई स्टार्टेड ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ। अब वो अपने मुंह से ब्रीथ करने लगा। आफ्टर अ वाइल आई स्विच टू सिंगल नॉस्ट्रल पावर विच सीम टू बी एडमिटिंग इनफ ऑक्सीजन। और कुछ समय के बाद उसे अपनी एक नाक के नथुने से प्रॉपर ऑक्सीजन मिलने लगी। जस्ट एज आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ आई वोक अप एब्रप्टली। और जब वो ये सब कुछ सोच रहा था, या जब वो सोने की कोशिश कर रहा था, एट दैट टाइम एब्रप्टली यानी अचानक से उसे क्या हुआ कि जस्ट आई वॉज ड्रिफ्टिंग ऑफ आई वोक अप एब्रप्टली एंड समथिंग वॉज रॉन्ग। और उसे ऐसा लगने लगा दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, और वो अचानक से जाग गया। ओके स्टूडेंट्स, विल कंटिन्यू आवर वीडियो इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू ऑल।